Good evening, everyone. On behalf of Father Mandir San Bruno, our Board of Trustees, our members, our devotees, and our dignitaries, I'd like to welcome all of you today in such a pristine and a divine program which has been sponsored by Trianj and performed by Reva Kumarji. It's an honor and a privilege for this temple to host this event. This is our second time hosting this event in Mandir, and to be honest with you, you guys are in for a treat. For the last few days, the team has been rehearsing for many, many hours, and I will not gonna release any information. I was told to be quiet. So I want you all to witness the entire program, which has been choreographed and artfully created by the entire professional team, which I will give you the information after the opening of the ceremony. Now I invite our Panditji to please come and say a few words. श्री सनातन धर्म मंदिर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस मंदिर में आकर के भगवान का पूजन पाठ वंदन अभिषेक पूजा सभी करते हैं। आज देवी भागवत हमारी दीदी जी के द्वारा श्रवण कराया जाएगा और हम सब लोग बड़े भाग्य से इस कथा को श्रवण करेंगे और संगीत के कलाकार हमारे मध्य विराजमान हैं। इनके द्वारा अच्छे अच्छे भजन हम लोग श्रवण करेंगे, भगवान का गुणगान गाएंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सनातन मंदिर की ओर से। जय श्री राम। Dharma Panditji. And now I request our dignitary guest, our Vice Mayor, City of San Bruno, Mr. Marty Medina. Please give our big round of applause and welcome our Vice Mayor. Mayor, thank you. Thank you so much. It's an honor to be here. It's great to be back. And where did he go? Devin, thank you so much. The concept of a unity festival and how San Bruno has so many different people, whether they are Mexican like me, whether they are white, whether they're Asian, it doesn't matter. In San Bruno, all is welcome, and I find this really amazing that a unity festival is occurring here in San Bruno. So I just wanted to thank you all, and looking forward to a wonderful evening. Thank you. Please, with a big round of applause, let's welcome and thank Mayor for supporting this Mandir. Mr. Marty Medina has been a backbone of Sanathan Mandir San Bruno. Anytime we have needed his help, his support, his guidance, has always been here. And I thank you for always being here for us and supporting the Sanathan Dharam as one of the cultural events that we put together. And I know there's many more to come. And Marty, with your help and with your leadership in this city, I know we can do a lot more. Fantastic. Thank you very much. Have a great night. Thank you so much.
काल, मैं हूँ वो शक्ति, मैं हूँ आदि शक्ति। आज की शाम आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज की ये जो शाम है उस माँ दुर्गा के नाम है, उस आदि शक्ति की है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये अतीत, ये काल पहले भी था और ये आज भी जुड़ा है। ये अतीत, ये काल हमारे साथ उस शक्ति के साथ जुड़ा है, उस आदि शक्ति जिसने इस संसार को रचा है। उस समय भी बिल्कुल अंधेरा था, कुछ प्रकाश नहीं था, पानी नहीं था, वायु नहीं थी, आकाश नहीं थी। फिर भी ये उत्पत्ति हुई। ये उत्पत्ति किसकी हुई? आदि शक्ति की। तो उस दुर्गा भवानी की कहानी दासी रेवा की जुबानी हम सब लेकर आए हैं कि उस दुर्गा शक्ति को किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे वो संसार को उसने रचा। वो शक्ति जिस शक्ति के साथ ही हम सब जुड़े हुए हैं। जब बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं था, उस ब्रह्म काल के साथ जो प्रकृति की शक्ति थी उसी ने ही इस मनुष्य की उत्पत्ति करी। जब मनुष्य की उत्पत्ति आदि शक्ति ने करी तब भगवान विष्णु के कान पे ही, उनके कान में ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्म काल ने कहा आदि शक्ति को कि इस उत्पत्ति को कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है, कुछ संसार ही नहीं है, आप इसको क्या नाम देना चाहते हो। उस समय इस आदि शक्ति ने 3 रूपों को लिया। सबसे पहले उसने उसी रूप को करने के लिए 3 शक्तियों को उस आदि शक्ति ने दिया जो बनकर आई महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। जब ये 3 शक्ति बनी, उस आदि शक्ति से जो उत्पन्न हुई 3 शक्ति, इन 3 शक्तियों से इस संसार को रचने के लिए ही माँ दुर्गा ने और शक्ति दी। तब उन्होंने दिया माँ पार्वती के साथ, माँ काली के साथ जो रूप था उनको दिया शिव शंकर का रूप। शिव शंकर के बाद उन्होंने विष्णु भगवान के साथ में दिया माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को दिया ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मपुत्र कहने लगे कि हे आदि शक्ति, आपने तो इस संसार को रचा। माँ ने कहा आदि शक्ति ने कि मैं ही तो हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ जिसने एक शिशु को किसी के गर्भ में डाला। मैं ही वो शक्ति हूँ जिसने आंखों को ज्योति दी। मैं ही वो शक्ति हूँ जिसने प्राण दिए। मैंने ही वो शक्ति हूँ जिसने श्वास दिए। मैं ही वो शक्ति हूँ जिसने सबके साथ जोड़ा। वो शक्ति जिसने जब ये सब संसार रचा तो उसी शक्ति के साथ ही आगे से शक्तियां जोड़नी शुरू हुई। जब शिव शंकर भगवान ने सती के रूप को लिया, आप सब जानते ही होंगे, जिस समय सती के रूप प्रजापति के जब जन्म लिया, उसी रूप को लेके ही सती के साथ में जब शिव भगवान को छोड़ के सती अपने प्रजापति, अपने पिता के घर जाती है और जब वहाँ उसने अपने पति का अपमान देखा तो वही वो सती हो जाती है। यहीं से ही शुरू होती है दुर्गा की कहानी। जब भगवान शंकर उस शरीर को लिए हुए हैं, सती के अपने पत्नी को शरीर लिए जगह जगह घूम रहे थे। कुछ नहीं उनको मालूम था, ना भूख, ना प्यास, ना कुछ। एक स्थान से दूसरी स्थान घूम रहे थे। सभी देवता बहुत परेशान हो गए। सबकी आंखों में ये था कि कैसे संसार चलेगा, कैसे सब कुछ होगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के साथ में जब उस सती के शरीर के टुकड़े किए तो वो जगह जगह जब टुकड़े गिरे तो उसके बन गए 52 शक्ति पीठ। वो 52 शक्ति पीठ जिसमें सारा संसार रचा हुआ है। वो 52 शक्ति पीठ के साथ में ही 164 शक्ति पीठ और बनते हैं, लेकिन हमारे श्रीमद् देवी भगवत पुराण के हिसाब से 52 शक्ति पीठ है। यहाँ पे ही जिस समय शक्ति पीठ होने के बाद में भगवान शंकर बिल्कुल शांत होकर एक गुफा में चले गए। तब वहां से ही दुर्गा का एक रूप
आदिशक्ति के पास जब जाते हैं तो आदिशक्ति से कहते हैं कि भगवान शंकर तो खो गए हैं, अब कहाँ से इस संसार को चलाया जाए। यहाँ पर आदिशक्ति ने माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को कहा कि आपको ही दुर्गा का रूप लेकर आना है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो दुर्गा की आदि शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, उस आदि शक्ति के साथ जुड़ी हैं 3 शक्तियां, और उन 3 शक्तियों से ही उत्पत्ति होती है माँ दुर्गा की, माँ वैष्णवी की, जिसकी आप सब पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की, वो माँ दुर्गा का रूप देखा जाए तो कौन है? पार्वती जी का ही रूप है। पार्वती ही माँ दुर्गा के रूप में आई हैं, और कालिका के रूप में भी उन्हीं को ही लिया गया है। यहाँ तक कि भगवत पुराण में कहते हैं कि जो द्रौपदी थी वो भी कालिका के रूप से ही थी, काली माँ के रूप से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। तभी जिस समय द्रौपदी का चीरहरण होता है, उसके बाद में जिस समय विष्णु भगवान उसको आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, उनको कपड़ा उनकी उंगली से लेकर उनके पूरे शरीर को ढकते हैं। जब रात को जब सोती हैं तो वो पूरा कालिका का चंद मुंड रूप में होती है, जिनके गले में पूरा मुंड ही मुंड होते हैं। तो वो उनका एक रौद्र रूप है। यहाँ से आती है वैष्णवी माँ की भक्ति। जब माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को बोला गया, तभी आदिशक्ति, जिसको हमको हमेशा पूजा करना है, सबसे बड़ी आदिशक्ति, जब उन्होंने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, आपने इस संसार को संभालना है सौंदर्य के रूप में, आपने इस संसार को संभालना है धन दौलत ऐश्वर्य के रूप में। माँ सरस्वती को उन्होंने दिया, जिसको हम बोलते हैं सप्त ऋषि सरस्वती। सरस्वती जो आपकी जीवा पे बैठती है, वो सुंदर खूबसूरत गौरी रूप दिया जाता है कि जो आप बोलेंगे वो आपकी सच होगी, आपकी वाणी सच होगी, आपका वाक सच होगा। उसको हम माँ सरस्वती के रूप में पूछते हैं। और जो माँ काली है, माँ काली करती है जो आपके शत्रुओं का संहार करती हैं, जो आपके दुख पीड़ा को हटती हैं, जो अधर्म के साथ लड़ती हैं, वो माँ काली आ जाती हैं। ये 3 रूप है माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जो पूरे इस संसार को संभाल कर बैठे हैं। और ये तीनों शक्तियां ही आपस में जुड़कर जो बनती हैं, वो बनती है शक्ति वैष्णवी। वो वैष्णवी शक्ति आज भी कहाँ पर है? त्रिकुटा पहाड़ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं वैष्णो देवी। वो आज भी किसका इंतजार कर रही हैं? आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। माँ वैष्णवी आज भी कलयुग में किसका इंतजार कर रही हैं? विष्णु भगवान का, श्री राम का। क्योंकि जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास में जा रहे थे, सीता जी के साथ में जा रहे थे, उस समय उन्होंने वैष्णवी एक छोटे से रूप में थे, जिन्होंने उनको उस जगह के सरोवर को पार करने में उनकी मदद करनी थी। तो श्री राम भगवान ने उनसे बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्नं भव सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती पदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। बच्चों के पास में खास स्टडीज के टाइम पे अगर सुनाते हैं, स्लो चलने दीजिए, इट इज रियली हेल्पफुल, बहुत ये फायदा देता है। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्नं सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। ये कहते हैं कि जो माँ लक्ष्मी है, सिर्फ हम दिवाली पे पूजा करते हैं ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी आपको हर साल 365 दिन चाहिए, क्योंकि उस माँ लक्ष्मी ने जो अलग अलग रूप लेके देना है, उसी में ही आपको सुख और समृद्धि मिलनी है। माँ लक्ष्मी के लिए हमेशा कहते हैं कि वो विष्णु जी के साथ ही वो विष्णु जी के पांव दबाती हैं।
लेकिन जैसे कि अब सावन का मंथ चल रहा है, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने लास्ट टाइम इस पे डिस्कस किया था कि जब सावन का मंथ आता है, भगवान विष्णु जब बिल्कुल अपना योग निद्रा की तरफ चले जाते हैं, तब इस भार को कौन संभालता है? इस भार को सबसे पहले हमारे गुरु पूर्णिमा के टाइम हमारे गुरु संभालते हैं। जब गुरु हटते हैं तो उसके बाद में शिव भोलेनाथ इस धरती पर आ जाते हैं इस भार को संभालने के लिए। जब भोलेनाथ का समय में 1 महीना सावन का हटता है, तब जानते हैं कौन आता है? तब हमारे मध्य पास में आ जाते हैं हमारे गणपति जी महाराज। गणपति जी महाराज आते हैं, वो 16 दिन संभालते हैं, तो हमारे कृष्ण भगवान आ जाते हैं। मेरे को भी तो संभालना है, विष्णु भगवान सो रहे हैं, तो इस संसार को कौन चलाएगा? अगर आप अपने घर में अपने नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो आप कोई ड्यूटी लगा के जाते हैं अपने बच्चों की कि मेरे घर को आप संभालेंगे, या आपके नेबर संभालेंगे, दादी संभालेंगी, नानी संभालेगी। तो उसी तरह जब विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तो तब ये सारे जो 4 मंथ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं चतुर्मास, ये हमारे ही भगवान हमारे को संभालते हैं, नहीं तो ये संसार खत्म हो जाएगा। और जब हमारे को कृष्ण भगवान हटते हैं, तो हमारे पितृ आ जाते हैं। हमारे पितृ भी तो हमारे को आशीर्वाद देते हैं, जिनकी आप हमेशा आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब अगर पितृ का आपके पास आशीर्वाद नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिनको कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स हैं। जब पितृ का खत्म होता है, तो तब आती है हमारे माँ दुर्गा, जो वैष्णवी हैं। माँ दुर्गा आती है, वो आपके संभालती है, जिसको हम कहते हैं कि दुर्गा पूजा नवरात्रि। और जैसे ही नवरात्रि होती है, तो यहाँ पर कौन आती है? माँ लक्ष्मी। जिस समय दिवाली का समय आता है, ये वो समय होता है जब माँ लक्ष्मी नीचे धरती पर आकर पूरे संसार को संभालती हैं। और तभी कहते हैं कि शाम के समय दिया जरूर कीजिए, खास तौर पे कार्तिक मन में, जब माँ लक्ष्मी चारों तरफ से घूम रही होती है, वो समय होता है माँ लक्ष्मी हमारे साथ हमारे घर पे होती है। और अगर आप शाम के समय, जिस समय जैसे कहते हैं ना संध्या काल बोलते हैं, राइजिंग सन और सन सेटिंग सन खत्म हो रहा है, शाम का समय सूरज ढल रहा है, उस समय में कार्तिक मंथ में लक्ष्मी के आगमन के लिए आपको अपने घर पे, खास घर के बाहर जरूर दीपक जलाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिवाली के 3 दिन ही करना है, जी नहीं, कार्तिक मंथ में इसकी बहुत ही महानता है। और खास तौर पे अगर घर की लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी आप खुद हैं। घर की लक्ष्मी आपकी बहू है, बेटी है। अगर सुबह कुछ मिनट पहले जल्दी, समझते हैं कि यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, हम लोग कई बार नहीं जल्दी उठ पाते, पर 2 मिनट के लिए ही, जैसे कि आप कभी सोच लीजिए आप वॉशरूम जा रहे हैं, फिर भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो एक छोटा सा कोई भी पॉट लीजिए, पानी का भरा होना चाहिए रात में आपकी किचन के पास में, जब किचन का टैप है, नल है, और सुबह उठते ही आप दरवाजा खोलिए और उसको पानी को बाहर डाल दीजिए, और फिर उस पानी को भर के बाहर रख दीजिए। अब फिर आप देखिए क्या लक्ष्मी का आगमन होता है। वो अष्ट रूप, अष्ट लक्ष्मी आपके घर में कैसे विराजती हैं, हर तरह से वो आपको सुख समृद्धि हर तरह की देंगी। तो वहीं पे ही हमारे को लक्ष्मी का पूजन करना है। जैसे ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो कुबेर जी के लिए भी कुछ दिन मिल जाते हैं हमारे संसार को संभालने के लिए। और जब फिर विष्णु भगवान उठते हैं, वो चतुर्मास खत्म होने के बाद में, जब हम आगे इसको काम को करते हैं, तो खास कर ये जो चतुर्मास होता है, ये 4 महीने हमारे अपने भगवान को, ईश को, सबको मनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके इष्ट हो सकते हैं भगवान भोलेनाथ हो, कृष्ण भगवान हो, कोई भी हो, लेकिन हमेशा याद रखिए, इस जीवन को, हमारे को श्वास देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है आदि शक्ति। वो आपकी अपनी माँ है, वो आपकी अपनी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, वो शक्ति सबसे ज्यादा है। शिव भगवान भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। जिस समय माँ सती खत्म होती हैं, तो क्या थे शिव भगवान बिल्कुल पागलों की तरह इधर से उधर होकर भटक रहे थे। तो अगर पुरुष, अगर आदमी ये सोचते हैं, मनुष्य ये सोचते हैं कि वो एक शक्ति के बिना सब कुछ कर सकते हैं, तो ये गलत फहमी है। शक्ति का हमारे साथ में होना बहुत जरूरी है। जब तक शिव और शक्ति आपस में नहीं होंगे, तो ये संसार ही नहीं चल सकता, इंसान चल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए इवन कि आप चाइनीज को ही देख लीजिए, कि कभी भी कहते हैं कि घर में हमारे को मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस चाहिए। व्हाई डू दे से मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी? क्योंकि जानते हैं कि फीमेल एनर्जी के बिना कुछ नहीं है।
मान लिया कि आज के समय में आप खाना भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्यों इंतजार रहता है कि हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी खाना बनाए? क्योंकि उस अन्नपूर्णा, उसके हाथ में एक सवाल है ही है कि जो आपको तृप्ति देता है, जो आपको शांति देता है। कुछ भी आप अच्छे से अच्छा कर ले, फिर भी अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी कुछ भी करेंगे तो आपको अच्छा लगता है। एक माँ जिस समय मनुष्य को पैदा करती है, कौन है वो? आदि शक्ति वही तो है। कहाँ से वो ताकत है कि 9 महीने किसी जान को अपने पेट के अंदर में रखना, कितनी पीड़ा के साथ कैसे वो इस बच्चे को जन्म देती है। तो यही तो प्राकृतिक है, यही प्रकृति शक्ति कौन है? हमारी आदि शक्ति है, हमारी माँ दुर्गा है। उसने एक ताकत दी है, एक औरत को ही ये ताकत दी है कि किस तरह वो 9 महीने एक बच्चे को, एक जान को अपने पेट के अंदर रखती है। और वो जान क्या है? आप कहते हैं कि हमारे पेट में हमारा बच्चा है, माँ उसको फीड कर रही है, लेकिन जो पेट के अंदर बच्चा है वो 84 लाख योनि का एक भोग भोग रहा है। वो बहुत कष्ट होता है, उस समय उसको बहुत कष्ट होता है। वो यही कहता है कि हे भगवान, हे माँ, मेरे को जल्दी से इससे बाहर निकाल, क्योंकि वो उस माँ के पेट में है, अच्छा बुरा गंदगी सब कुछ उसके मुंह में जा रही है, उस माँ की नाड़ से उसके मुंह में जा रही है। वो इतने कष्ट में होता है। तो वो है हमारा 84 लाख योनि का भाग, जिसको वो इतनी दर्द के साथ सहता है। और माँ वो है हमारी आदिशक्ति, वो उसको सहलाती है। वो कुछ भी खाएगी तो कहेगी कि सबसे पहले मैं इसलिए खा रही हूँ कि मेरे पेट में मेरा बच्चा है, हो जाए। बच्चे का जन्म होने के बाद में सबसे पहले वो माँ ही अपना स्तनपान अपने बच्चे को कराती है। पहला दूध वो माँ, जो कहते हैं कि उससे होता है, पहला अक्षर वो बोलेगा, माँ से बोलता है। तो सब कुछ देखिए कि वो कौन है, वो एक माँ है। और वो माँ किससे है? वही आदि शक्ति की बनी हुई ताकत है। उस शक्ति के बिना कुछ नहीं है। अगर आज के समय में हम ये कहते हैं कि हमारी माँ नहीं, ऐसा गलत है। अगर माँ नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि एक माँ ही ऐसा है कि वो सारा अपने आप को सैक्रिफाइस करती है। जब आप पैदा होते हैं, वही में सुसु कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रो रहे हैं, जितना मर्जी काम कर रहे हो, तो माँ छोड़कर भागेगी आपको उठाने के लिए। कहते हैं कि उसी तरह से अगर आज आप तकलीफ में हो तो आपको अपने दोनों हाथ इसी माँ के आगे करने, तभी तो वो आपको उठाएगी। अगर आप अपने हाथ ही ऊपर नहीं करोगे, अगर आपके आंसू ही नहीं आएंगे, तो आप इस माँ के पास कैसे जाओगे? ये आपके दुख को कैसे समझेगी? अपने इस दुख को बताने के लिए उस माँ को आपको बुलाना होगा। उस माँ लक्ष्मी के हर रूप को, उस अष्टलक्ष्मी को अपने जीवन में लाने के लिए आपको उस आदि शक्ति को बुलाना होगा। और वो आदि शक्ति आपके खुद के अंदर है। आप कमजोर नहीं हैं। हाँ, उसका दुरुपयोग नहीं करना। अभी आपको काली नहीं बनना, क्योंकि अभी कोई आपको महिषासुर नहीं मिला, लेकिन आप लक्ष्मी हैं, जो शान, जो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी। कहते हैं कि किसी को अगर पति को भी लुभाना है तो आप ही एक रूप हैं। किसी बुजुर्ग ने बहुत साल पहले कहा था, मुझे आज भी ये वक्त याद है, कि एक औरत ऐसी है जो हर तरह का रूप लेती है, माँ का भी, बेटी का भी, पत्नी का भी, कि प्यार से खिलाएगी तो माँ का रूप, अच्छी से अच्छी वो भाई के लिए, एक बहन का बनके भाई के लिए आशीर्वाद देगी, एक बेटी बनके वो हमेशा अच्छा से अच्छा अपने माँ के लिए बोलेगी, और एक वो औरत बनकर, एक वेश्या बनके वो रात को अपने पति को भी पूरा सुख देगी। तो ये अलग अलग रूप किसके हैं? एक उस औरत के रूप हैं, और वो औरत के कौन है? एक शक्ति है, वो ताकत है। एक कहते हैं कि उसमें हौसला, एक पेशेंस, एक औरत के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इस माँ लक्ष्मी के लिए विष्णु भगवान भी कहते हैं कि पैर आप दबा रही हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को भी तो थोड़ा होता ना कि मैं इनके पैर दबाऊं ताकि ये मेरे पास ही रहे, मेरा प्रभु मेरे से कहीं दूर नहीं जाए, मेरे विष्णु भगवान मुझसे कहीं ना जोड़े, मैं उन्हीं के पैर दबाती रहूं। लेकिन पैर दबाते दबाते वो एक ही कहती हैं, ओम श्रीम हिम श्री कमले कमलालय प्रसीदम प्रसीदम श्रीम हिम शिम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी प्रियरे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो जोर से सब बोलिए, जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी
नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः प्लीज विष्णुप्रियाय नमो जोर नमः से धनप्रदाय अभी अभी तो महालक्ष्मी आ रही है, नमो नमः कैसे हम मनी को काउंट करेंगे? क्लैप योर हैंड्स। विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः महालक्ष्मीये नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। कहते हैं कि जो भक्ति होती है वो तो मिलती ही है, और कई बार हम कहते हैं कि वो हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला और भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। मानती हूँ कि भाग्य से भी हमारे को काफ़ी कुछ मिलता है, हमारे जो भाग्य में लिखा हो। दूसरा तरीका होता है भक्ति से। भक्ति से जो आपको कह रहे हैं कि भाग्य ये आपके कर्मा को ये आपके ट्रांजिट करता है। तीसरी हमारे को किससे मिलता है? जो हमें को सुख चाहिए सब कुछ, वो होता है हमारे को अपने ब्लेसिंग्स, बड़ों की ब्लेसिंग्स, अपने पेरेंट्स की हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हैं, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की, वेल विशर्स की। नहीं, अगर आप सोचते हैं कि इन हाथों की लकीरों से मिलते, वो नहीं है। जिनके हाथ नहीं होते तो उनकी भी तो तकदीर अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो कहना ये चाहती हूँ कि जस्ट क्लैप, चैंट, डांस एंड क्लैप, यही भगवान चाहते हैं। जितनी श्रद्धा के साथ आप उसको बुला सकते हैं आप बुला लीजिए, और ये समय है, यही समय है कि जो आप अपने आप को इसके साथ जोड़ सकते हैं। आप म्यूजिक भी सुनते हैं, डांस करते हैं, आपके पैर अपने आप नाचने थरथराने शुरू हो जाते हैं। तो ये आज की जो शाम है उस आदि शक्ति के नाम से है। वो आदि शक्ति ने अगर आज आपको यहाँ पे बुलाया है तो इसका मतलब क्योंकि उसका हुक्म था, वो चाहती थी, तभी तो आप बैठे हैं, तभी तो हम सब एक दूसरे के साथ में मिलकर उसके नाम ले रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा जरिया हूँ, मैं तो उसकी दासी हूँ, मैं तो एक संदेशा दे रही हूँ, लेकिन हुक्म तो उस महामाई का है, उस माता रानी का है, उस माँ दुर्गा का है, उस आदि शक्ति का है। उस आदि शक्ति में हम कैसे जय माता दी बोलते हैं। माँ का आपने सरस्वती को देख लिया, माँ, मैंने आपसे माँ लक्ष्मी के बारे में बात कर लिया, लेकिन माँ काली का भी तो रूप है। माँ काली का रूप है क्या? हम उसको क्यों महिषासुर मर्दनी बोलते हैं? क्या रीजन है उसका बोलने का?
जिस समय आदि शक्ति ने ये संसार रच दिया था, मनुष्य पर्वती बन गए, पाताल में सब आ गए, सब कुछ चल रहा था, उसी समय एक महिषासुर नाम का असुर भी था। वो असुर क्या था? एक कहते हैं कि आधा शरीर तो उसका भैंस की तरह था और आधा शरीर उसका ऊपर एक अजीब राक्षस वाला था। और उसने इतना तंग कर दिया था, इतना तंग कर दिया था चारों तरफ कि वो सभी देवी देवताओं को लेना उसने काबू करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसको ये था कि उसको ब्रह्म काली ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे, तुम हमेशा जीवित हो। लेकिन वो ये भूल गया था कि ब्रह्म ने ये भी कहा था कि तेरा जो भी, तेरी अगर मृत्यु होगी तो किसके थ्रू होगी? किसी स्त्री के थ्रू, किसी औरत के थ्रू होगी। जब उन्होंने बहुत ज्यादा ये सब शुरू कर दिया, तब काली माँ पार्वती ही काली के रूप में है, तब उन्होंने अपना रूप एक ऐसा बनाकर कालिका माँ ने जाके महिषासुर का संहार किया था। तभी उनको महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। वो महिषासुर मर्दनी इतने रोद, इतने गुस्से में, इतने एक ऐसे रूप में आ गई थी कि तब शिव भगवान जिस टाइम वो नाच कर रही थी, तो शिव भगवान उनके पाँव के नीचे, कि ऐसा ना हो कि वो धरती पर जब वो पाँव रखेंगी कि पूरी अताल पताल पूरी धरती हिल जाए, तब शिव भगवान उन्होंने अपना सीना रख दिया। और जब माँ काली जिस समय पैर उठाने लगी, उन्होंने देखा कि शिव भोलेनाथ उनके पाँव के नीचे आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना पैर ऊपर का ऊपर ही रख लिया, क्योंकि उनको शांत करना भी बहुत जरूरत है। मानती हूँ कि आपकी भी झगड़ा हो जाता होगा, आपको भी गुस्सा आता होगा, तो कहते हैं कि मैं तो काली का रूप बन गई हूँ। काली का रूप बनिए, जरूर बनिए। काली का रूप तब बनिए जब आपके ऊपर, आपके स्वाभिमान के ऊपर में कुछ हो। काली का रूप तब बनिए जब आपके अपनी संतान को कोई तकलीफ में हो, कोई उसको दुख दे रहा हो, तो आप काली का रूप बनिए। काली का रूप आप जरूर बनिए जब आपके साथ अधर्म हो रहा हो। वो काली का रूप बनिए कि जो आपको कोई परेशान कर रहा हो। आज के इस समय में भी मैंने देखा है कि बहुत, ऐसा नहीं कि अमेरिका की कंट्री में नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने आप को दबा कर रहते हैं। नहीं, फिर वो आप काली नहीं हैं, आपके बीच में वो आदिशक्ति की ताकत नहीं है कि अगर आप अपने आप को दबा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके घर वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, नहीं। काली मीन्स कि आपको अपने राइट के लिए, अपनी बात के लिए बात करनी है, अपने स्वाभिमान के लिए। अगर आपको कोई गलत कर रहा है या कोई आपको नुकसान दे रहा है आपकी इज्जत मान के ऊपर में, तो एटलीस्ट आप में खुद ताकत होनी चाहिए काली वाली। आप किसी और का इंतजार नहीं करिए कि कोई आपको आए और आपको सपोर्ट करे, नहीं। आपकी अपनी ही शक्ति काली का रूप ले सकती है। तभी उसको महिषासुर मर्दनी कहा गया है, क्योंकि माँ दुर्गा के 8 हाथ हैं। 8 हाथ में उसके पास त्रिशूल भी है, शंख भी है, सब कुछ है। लेकिन माँ काली जब समय आती है, उनके गले में जो मुंड की माला होती है। उनकी जीवा क्यों बाहर है? क्योंकि उन्होंने वो जो महिषासुर का रक्त पिया था, रक्तपान किया था, तभी उनकी जीवा लाल वो खून से भरी हुई है, आंखें उनकी लाल। वो रूप अब सोचिए कि वो एक रूप, एक कालिका माता की काला रूप है, बिल्कुल चंड मुंड की माला उन्होंने गले में पहनी हुई है, जिवा उनकी बाल है, खून से लथपथ है। वो सारे संसार को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उन्हें उसी करके एक राक्षस ने, महिषासुर ने पूरा देवलोक, पूरे अताल पताल संसार सारे को खत्म कर दिया था। वो किस तरीके से रक्षा करती हैं? क्यों माँ वैष्णवी, आपने देखा कि वैष्णवी क्यों गई थी? अगर आप लोग वैष्णो देवी कभी गए होंगे, जाते ही होंगे आप लोग, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो वहां पे कहते हैं ना कि जी हाँ, माँ गर्भजून में थी। क्यों जाके छुप गई थी वो माँ गर्भजून में? क्यों? कि भैरव बाबा, उनकी बुरी नजर थी कि वो इतनी सुंदर रूप था माँ वैष्णो का, इतना सुंदर रूप कि उनकी वो बुरी नजर थी। और जिस समय वो प्रसाद खिला रही थी तो वो बिल्कुल तामसिक खाना खाते थे। जब उन्होंने हलवा पूरी डाली तो कहते नहीं, मेरे को तो ये मांस मदिरा चाहिए। एक छोड़, 2 छोड़, तो जो उनका वो भैरव का रूप था, उस समय वो भागती हैं और वो जाके गर्भजून में छुप जाती हैं। और आज भी त्रिकुटा पर्वत के ऊपर में, जहां पर वैष्णो देवी है, जिसको पांडवों ने उस जगह को ढूंढ के बताया था कि माँ वैष्णो आज वहां वास करती हैं, एंड इट्स ट्रू, शी इज स्टिल देयर। और आज भी वो जो गुफा में है, 3 पिंडी रूप है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती।
अब तो टाइम चेंज हो गया, नहीं तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी वेकेशन सिर्फ वैष्णो देवी होती थी। हमारे पेरेंट्स हमको वो लेके जाते थे, और हम जब 7-8 साल के होते थे वो रास्ते इतने पथराव होते थे कि वहाँ लाइट भी नहीं होती थी। यहीं से तो माँ वैष्णो को ही तो शेर की सवारी मिली। क्यों? जब वो 8 साल की बैठी हुई वो जब पूजा कर रही थी तो उस समय जब शेर उनको खाने के लिए आया, जब शेर उनको खाना चाहता तो उसने सामने देखा कि वो बच्ची नहीं 8 साल की, वो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का स्वरूप, उनका अंश थी। और शेर वही का वही उनके पाँव में लेट जाता है और उस दिन से वो शेर सवारी बन जाती है। तब से उनको कहा जाता है कि वो शेर के ऊपर सवार हैं, उसी शेर पे सवार आया। और आज भी त्रिकुटा की उस गुफा में माँ वहीं पे विराजमान है। चाहे कितना मर्जी चेंज हो गया, लेकिन फिर भी वो गुफा जिसको कहते थे कि जो मेन जहाँ पे दर्शन होते थे, जब उसके अंदर जाते थे तो पेट के बल से जाते थे और वहां पर अंदर एक पूरा हाथ था जो शेर का पंजा। अब चेंज कर दिया उन्होंने कि आप लोग सीधा खड़े होके जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सही रूप माँ वैष्णो का था वहां पे है। और जब कलयुग जिस दिन खत्म होगा वही माँ वैष्णो आज भी वो 10 साल की ही बच्ची है। हमारे पुराणों के हिसाब से एक श्री राधिका जी को और माँ वैष्णो को हमेशा एक ही वरदान मिला था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी। माँ राधिका, माँ वैष्णो और राधिका हमेशा वो ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। जबकि राधिका को आप देखेंगे वही 10 साल से 12 साल के यौवन की एक दिखती हैं और वो सारी ऐसी ही रही 100 साल तक। जब तक वो इस धरती पे रही वो ऐसे की ऐसे ही रही, और उसी तरह ही आज माँ वैष्णो भी ऐसे ही है। जब तक ये कलयुग खत्म होगा तब वो श्री राम जब हमारे कल्कि वाले किस रूप में आएंगे, कब आएंगे, जिसका आप सबको इंतजार है, तो वहीं पे ही वो माँ वैष्णो को लेंगे। तो महिषासुरमर्दिनी के लिए हमारे साथ में सही जो लेकर आ रही है महिषासुरमर्दिनी का रूप, हमारे साथ में हमारे बेरिया की बहुत अच्छी जलसा डांसर से हैं अंकिता जी। जय माता दी। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी गिरि नंदिनी गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी वैष्णविदासिनी जिष्णुते भगवती श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते महेश्वरी महाकाली महाशक्ति महेश्वरी महिषासुरमर्दिनी महाकाली महाशक्ति
அதிசய சுகமுடன் அருள்மழை பொழிவாய் சரி மதி சரி சரி மரி ரிச மரி சரி சாரி மரி சரி சரி பவ சரி பவ மகாகாளி மகாசக்தி மகேஸ்வரி ஆக்கமாய் நிறைந்த சக்தியே என் ஊக்கமாய் நிறைந்த சக்தியே நல்நோக்கமாய் வளர்ந்த சக்தியே தினம் காக்கவாய் கருமவனவாசம் ஆக்கமாய் நிறைந்த சக்தியே என் ஊக்கமாய் நிறைந்த சக்தியே நல்நோக்கமாய் வளர்ந்த சக்தியே தினம் காக்கவாய் கருமவனவாசம் அதிலது தெளிமுற மனமது ஒளியுற அதிசய சுகமுற அருள்மழை பொழிவாய் மகாசக்தி மகேஸ்வரி सारे जोर से बोले जय माता दी। कहते हैं कि महिषासुर मर्दनी के बिना आगे कभी भी हमारी जो पूजा नहीं पूरी होती है। अगर आप कभी भी दुर्गा की पूजा करें, खासकर नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय में ज़रूर से ज़रूर शाम के समय में महिषासुर मर्दनी को ज़रूर, अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सुनिए। क्योंकि महिषासुर मर्दनी के बाद से ही 10 महाविद्या शुरू होती हैं। जो 10 महाविद्या किसका है? वो भी आदिशक्ति का। फिर मैं एक बार बताना चाहूंगी, आदिशक्ति जिसने संसार को रचा, आदिशक्ति से 3 शक्ति हुई, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ने एक रूप दिया, माँ दुर्गा, माँ अम्बे, जिसको हम बोलते हैं माँ वैष्णो को। और वहां से आगे कौन आता है? महिषासुर मर्दनी, जिन्होंने महिषासुर का संहार किया। और साथ ही साथ वहां आ जाती है हमारी 10 महाविद्या। अब जो 10 महाविद्या हैं वो कौन सी हैं? वो 10 महाविद्या अलग अलग है। छिन्नमस्तिका, बगलामुखी देवी, हर तरह के अलग अलग जो 10 महाविद्या हैं, वो 10 महाविद्या हमारे विष्णु जी के 10 स्वरूपों के साथ जुड़ी हुई हैं। जिसका मैं जब विष्णु पुराण करूंगी उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी कि विष्णु जी के 10 अवतार जो थे वो इन्हीं 10 महाविद्या के साथ विष्णु जी के साथ जुड़कर आए थे। और वो 10 महाविद्या का अगर हम नवरात्रि के समय में हम जब पूजा करते हैं तो उसको भी हम पढ़ें तो अच्छा रहता है। ये तो आप जानते ही हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, लेकिन 2 नवरात्रि जिसको हम बोलते हैं गुप्त नवरात्रि, वो भी आते हैं। और जो 10 महाविद्या का जब हम श्लोक पढ़ते हैं या 10 महाविद्या को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग गुप्त नवरात्रि के समय पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि तांत्रिक।
जो चैत में नवरात्रि आती है, जब हमारा विक्रमी संवत शुरू हुआ, हमारा साल शुरू होता है हिंदू के हिसाब से, तो उस समय हम नवरात्रि करते हैं, 9 दिन की पूजा करते हैं। अब 9 दिन की पूजा में क्या है, क्योंकि माँ के 9 रूप हैं, वो सब अंश अंश, जैसे कि आपके परदादी थी, फिर दादी थी, दादी की बहू थी, बेटी थी, उसी तरह से आदि शक्ति का ही ये परिवार चलता आ रहा है। तो जो 9 रूप हम पूजते हैं नवरात्रि के बीच में, वो आदि शक्ति का ही रूप है, वो आदि शक्ति से अलग नहीं है। तो सबसे बड़ी हमारी आदि शक्ति वो रूप में आती है। अब जो हम 9 रूप करते हैं, तो 10वां हम क्या करते हैं, विजय होना, मतलब कि 9 रातें अगर हमने जाग ली, नवरात्रि में हमने पूजा करी है, तो उसका हमारे को क्या फल मिलना है। नवरात्रि हम रात को ही पूजा करनी चाहिए। आप दिन में दीपक कर सकते हैं, अखंड दीपक लगा सकते हैं, जैसे भी दीपक लगाएं, लेकिन देवी पूजन नवरात्रि में जो रात को जिसका फल मिलता है, वो 100 गुना फल ज्यादा मिलता है। रात के समय ही देवी जागृत होती है, देवी का रूप ही रात के समय में पूरी एनर्जी, कहते हैं ना कि पूरी इसमें ताकत होती है जब आप पढ़ते हैं। तो अगर आप सप्तशलोकी दुर्गा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कंठस्थ है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कभी नहीं पढ़ सकते डेली रूटीन में भी, तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, बहुत ताकतवर है। जिस समय आप देखें कि हमारे पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, एटलीस्ट 2 मिनट भी आप अपनी आंखें बंद कीजिए। दुर्गा सप्तशलोक में आपको 32 नामावली मिलेगी। कहते हैं दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गो तो दुआरणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग माँ पहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दुआनला, दुर्ग माँ, दुर्ग मलोका, दुर्ग मात स्वरूपनी, दुर्ग मात प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्ग मज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासनी, दुर्ग मोह, दुर्ग मगा, दुर्ग मात स्वरूपनी, दुर्ग माँ सुरहंत्री, दुर्ग माँ युद्धारणी, दुर्मांडकी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्भीमा, दुर्भामा, दुर्गा, दुर्गदारणी नामावलिमा यस्तु दुर्गाया मम माना पठेत सर्वध्यानो भक्ति भविष्यति न संशय। अगर आप ये 32 नामावली भी अगर आप नवरात्रि में कंठस्थ कर लेते हैं, और दिन रात समय जिस समय भी चाहे आप ये 32 नामावली लें, मैं आपको अपनी जिंदगी का मैं आपको तजुर्बा बता रही हूँ, 59 इयर्स का, इस 32 नामावली में वो ताकत है कि आप कहते हैं कि ये महसूस करेंगे अपने जिस्म के अंदर में कि आपके पास में वो माँ दुर्गा आपके अंदर है। आप उसकी एनर्जी को महसूस करेंगे। आप वो उसी एनर्जी को ये चैंट करने के बाद में अगर आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं, सर से लेके पांव तक, आप उनका देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप नहीं चैन कर सकते 32 नामावली, तो आप अपने इसको घर पे लगा सकते हैं, अपने बिजनेस की जगह पे लगा सकते हैं। जैसे ही आप अपने काम पे जाएं, कुछ करें, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इस 32 नामावली को सुन सकते हैं। तो नवरात्रि के दिन में जब हम 9 रात पूजा करते हैं, तो वो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि चैत महीने में हमारा विक्रमी संवत, हमारा नया साल शुरू होता है। और जब हमारा उसके बाद आता है हमारा जब जेठ, जिसको हम बोलते हैं जून और जुलाई में, दैट इज गुप्त नवरात्रि। उस गुप्त नवरात्रि में जो पूजा करते हैं, वो हम करते हैं 10 महाविद्या की पूजा। 10 महाविद्या में जिसमें बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, कुमेश्वरी, भूमावती, ये 10 महाविद्या जो हमारे को सिखाती हैं, जिनके आप कह सकते हैं कि नरवान मंत्र भी होते हैं। उसके बाद में आता है जिसको बोलते हैं आप आश्विन हमारे नवरात्रि, जो को बोलते हैं शारदीय नवरात्रि, बड़े नवरात्रि। यहाँ पर हम दुर्गा की पूजा करते हैं क्योंकि इस समय माँ दुर्गा धरती पर होती है। ये शारदीय नवरात्रि को बड़ा नवरात्रि तभी कहा जाता है कि माँ दुर्गा यहीं पे होती हैं। तभी तो आप सब खूब गरबा करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि माँ आपके साथ है, आपके घर में है, आपके परिवार में है। वो माँ इस तरह आपके साथ ही जुड़ जाती है कि जैसे यही है कि अगर आपके कोई भी पेरेंट्स आते हैं, इंडिया से आते हैं, कुछ आते हैं, तो आप कितना खुश होते हैं। आप अपने घर को संवारते हैं, सजाते हैं कि हमारी माँ आई है। तो साल में 2 बार जब माँ आती है, तो आप इसको हमेशा के लिए अपने घर में विराज सकते हैं। आप कह सकते हैं कि माँ अब आप कभी नहीं जाओगी मुझे छोड़ के, आप यहीं रहो। और इस माँ को अगर मनाना है तो एक ही तरीका है,
जो मैंने आपको पहले कहा कि माँ तब आपको उठाती है जब बच्चा रो रहा हो। जब बच्चा रो रहा होता है, माँ सब कुछ छोड़कर आ जाती है और अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। तो इसकी भक्ति के लिए आपको ये नहीं है कि आपको फूल चाहिए, फल चाहिए, महंगी चीज चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, नहीं। जो आपके दो आंसू है ना, अगर आप इसके दर पे जाके तो आंसू भी बहाएंगे, या अगर आपका मन परेशान है, कुछ है, सब लाइट्स बंद कर दीजिए। एक अपने पूजा के स्थान में जो इस माँ का रूप है, उसके आगे अगर आप लेट के दो आंसू भी बहाएंगे तो कैसे कहेंगे कि आप माँ आपकी नहीं सुनती? वो आपकी जरूर सुनेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी, क्योंकि वो शक्ति आपके बीच में है। सिर्फ आपको वो शक्ति जागृत करनी है। तभी तो वो माँ उस दीप की लो में होती है। जब वो लो जितनी ऊंची बढ़ती है, उतनी आपकी एनर्जी भी बढ़ती है, उतनी ही आपकी ताकत भी बढ़ती है। तो उस माँ के रूप को बुलाने के लिए अब आप सबकी जरूरत है। अब जो ये कुछ समय है, ये पूरा आपको इस भक्ति के साथ जुड़ जाना है। बुला लीजिए माँ को, ये देने के लिए बैठी है। आप में हिम्मत है तो आप इस माँ से ले सकते हो, इसके भंडारे भरे हैं। आप में हिम्मत है तो अपनी झोली फैला के ले जाओ, यही मौका है, खाली मत जाइएगा। और अगर आपको मांगना ही नहीं आता तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो देने को तैयार बैठी है, दोनों हाथों से वो लुटाने के लिए बैठी है। आप में हिम्मत है तो आज उस मैया का, उस माँ का, उस आदि शक्ति का, उस दुर्गा भवानी का, उस अम्बे का आज अपने साथ, उसके साथ जुड़ जाइए। जय माता दी। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। मैया सोनिया गुफावां विच जी, फुल तेरे विखरे ने रावां विच जी, नाम तेरा खिड़िया हवावां विच जी, बस गए कोई मेरी सावां विच जी। मैया सोनिया गुफावां विच जी, फुल तेरे विखरे ने रावां विच जी, नाम तेरा खिड़िया हवावां विच जी, बस गए कोई मेरी सावां विच जी। जय जय मां, 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 जय जय मां। लाल सुहा चोला माए तू न सकला, चुन्नी उत्ते गोटा माए चंद लगला, तेरे दर मेरे गाना होर दिसला, एक मेघ दिल साडा नहीं रजना। लाल सुहा चोला माए तू न सकला, चुन्नी उत्ते गोटा माए चंद लगला, तेरे दर मेरे गाना होर दिसला, एक मेघ दिल साडा नहीं रजना। जय जय मां, जब आप लोग कभी तैयार होते हैं और लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं, तैयार होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बार बार आपको शीशे को देखते हैं, तो आज इस सुंदर रूप को माँ के लाल चोला पहना हुआ है, कितना सुंदर रूप है, अपनी आंखों में उतार लीजिए। ये एक ऐसा रूप है, एक ऐसी छवि है जो हमेशा आपकी आंखों में बसी होनी चाहिए। नहीं भी अगर मंदिर जा सकेंगे, लेकिन अगर आंखों में उसका रूप है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। किसे भी न मैया मेरा हाल पूछेया, दुनिया च होर किसे नहीं सुनेया, गीत मेरी प्रीत मेरी तेरे नाल मां, आगे ते मैं तेरा सारा तक मन्नेया। किसे भी न क्या करना अगर आपको कोई हाल नहीं पूछता तो क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं है, आपका हाल पूछने वाली माँ बैठ रही है ना, आप उसके पास आइए। बाकी तो संसार ऐसा ही है कि किसी ने मेरा पूछा, मुझे उसने नहीं पूछा, मुझे इसने नहीं पूछा, मुझे सोशल मीडिया में लाइक्स मिले नहीं मिले, मुझे फॉलो किया नहीं, फॉरगेट इट। आपको इसकी लाइक्स चाहिए, आपको ये फॉलो करे, आप इसको फॉलो करो, तो जुड़ जाइए ना इसी के साथ।
झूलते श्रृंगार लेके माँ बन टोलियां माँ तेरे दर चलियां मैया तेरे दर तो दुआ मांगियां संगतां ने देखो मायूं इधर रखियां प्यार वाले झूलते श्रृंगार लेके माँ बन टोलियां माँ दर चलियां जय जय माँ 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 मैया सोनिया को पावा फुल तेरे बिखरे ने रावा नाम तेरा चिड़िया गवावा फंस गया वही मेरी सावा मैया सोनिया को पावा फुल तेरे बिखरे ने रावा नाम तेरा चिड़िया गवावा फंस गया वही मेरी सावा जय जय माँ 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 जय 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 माँ जय जय माँ जय जय माँ। मैं जल्दी से कुछ सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि समय तेजी से जा ही रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कल परसों बहुत रौनक लगेगी। आप जितने लोग बैठे हैं आज मैया के सामने बैठे हैं, मैंने जिसे बोला कि वो तो आज दे रही है, ले जाइए। कौन कौन आज इस माँ से वर लेना चाहता है? सब जितने लोग लेना चाहते हैं मुझे एक बार बता दीजिए, कौन इस माँ से वर लेना चाहता है दिल से? दोनों हाथों से पक्का। पर इसको अगर वर लेना तो आपको दोनों हाथ पूरे ऊपर करने पड़ेंगे, तभी वो वर देगी। और ऐसा वर देगी कि आज जो आपसे वादा करेगी वो पूरा निभाएगी। She will fulfill her promise today. Only you have to ask. जो भी चाहिए मांग लीजिएगा, ये मौका है। और पूरी, और उसके लिए क्या चाहिए? खूब जोश चाहिए। जैसे आपको किसी का अपने बच्चे अपने माँ से मांगते हैं, मुझे चॉकलेट खानी, मुझे खानी है चॉकलेट। आज आपको यहाँ पे ये करना है कि माँ मुझे तुझे वर देना है, देना है, देना है, तो वो वर देगी ही देगी, देगी। तो जोर से बोलो जयकारा झंडे वाली माँ माई का, बोल सचिया जोता वाली माँ माई, जयकारा ही माँ शेर सवारी का। तो तैयार हो जाओ, वर देने के लिए वो आ गई है। अब आप लेंगे वर दोनों हाथ ऊपर करके, वर दे वर दे वर दे माँ मेरी, वर दे।
not share with anybody. बस किसी को आपको 15 मिनट वर्ड को जितना ले सकते हैं लेके जाइए. जय माता दी।
है
शम्य दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नाथ जनों के संकट पास जनों के दुर्गुण शम्य दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का ओ स्वामी दुख बिन से मन का दुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे नाथ पे नाथ मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी ओ तुम बिन आस न दूना प्रभु बिन आस न दूना आस कहूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परदाता तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ब्रह्म करते करतार ब्रह्म करते तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं पूरन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अबोध सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति जिस दिन उतरा मैं जिस दिन मिलूं शरण तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु तुम हरता आप मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे उठाओ करुणा उठाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरणागत बढ़ाओ शरणागत बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा ओ तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण तेरा दे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश सोम सोम दे भरे भंडार तेरे मंगल मेर दा बख्शो दान माता बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे वीर वीरता दा बख्शो दान माता शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले शनि शांति दे होवन समान माता एतवार विश्वास यकीन होवे पूरन कर दो सारे काज माता हे माता मातेश्वरी सर्व सुखों की खान माँ देने वाली एक है मांगे कुल जहान आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी माँ आसरा जेठ 12 मास मेरी दादी के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ माँ देने वाली एक है बांधन लाख करोड़ ऐती अंबिका जी हिंग ज्वाला तेरा पर्वता विच दरबार माता सोम सरस्वती तू है भद्र काली तुझे सिमरता कुल संसार माता मंगल मनसा देवी तू है पिंड रानी समय समय ते लवे अवतार माता बुध वीरता भरी महान शक्ति बगे शेर ते होवे सवार माता वीर वैष्णो देवी नैना देवी मैया कई भक्त दिते तार माता शुक्र शक्ति भवानी के पालू है तू कई जालमानु दिता ही मार माता शनि शांति रूप महान दुर्गे तुझे भक्त सिमरन सतेवार माता रूप एक ते नामे अनेक तेरे तेरे चरणों तो दास बलिहार माता मेर करो मातेश्वरी आए तेरे द्वार रखो लाज सटियान के माँ करते हैं नमस्कार
नमस्कार, रखो लाज सडियान के, माँ करते हैं नमस्कार। मैया जी मेरे अंग संग आप रहो मेरे अंग संग आप रहो। ऐसी लगन लगा दे माँ, तेरे ही गुण गाऊं, तेरा ही मैं नाम जपूं माँ, तेरे ही गुण गाऊं। ये जयकारा ही झंडे वाली महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। हरि ओम मां कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सभी लोग आरती घुमा दीजिए। सभी लोग आरती लीजिए और मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि प्रसाद को जरूर आप लेके जाइए, खा के जाइए अच्छी तरह से। कल है हमारा शिव पुराण, परसों है विष्णु पुराण। मैं जानती थी आज हमारा वर्किंग डे था। आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको कल परसों जरूर लेके आइए। 6 to 7 हमारा रेफरल चलेगा, आप आएंगे और उसके बाद में 7 को हम संडे को हम अनाउंस करेंगे। काफ़ी बड़े प्राइजेस हैं। हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारे को ये सारी हिम्मत दी, गोल्ड की चेन है रेफरल में जिसका भी नाम आएगा, टीवी है, साड़ी है, गोल्ड के टॉप्स हैं, गोल्ड की बाली है, चांदी की चेन है और भी काफ़ी प्राइजेस हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगी। और अनूप जलोटा की आपको फ्री टिकट्स भी है, उसमें हम आपको दे रहे हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, हमारे सारी टीम को, हमारे को सबको खूब हिम्मत दीजिए और इसी तरह उस माँ का जयकारा लगाइए। और कल लगेगा भोलेनाथ को, आज आपने बुलाया आज शक्ति को, कल आपके साथ में आएगी शिव शक्ति। तो शिव शक्ति का वेलकम करने के लिए कल जल्दी से टाइम से आ जाइएगा, लेट मत करिएगा, हमें आपका इंतजार करेगा। जोर से बोलो जय माता दी।